हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर द पार्ट ऑफ ए craniata in which cranium or brain box is absent. Second group of chordata is craniata. Chordata is divided into two groups, acraniata and craniata. So second group of phylum chordata is craniata. Craniata means in which cranium or brain box is present. Craniata is also divided into two divisions, agnatha and gnathostomata. Okay, ऐसे फाइलम कॉर्डेटा का दो पार्ट, एक craniata. Craniata is divided into subphylum vertebrata. And vertebrata again divided into agnatha and gnathostomata. Okay, it means suppose that this is chordata. Chordata is divided into two parts, two groups. These are groups, acraniata, second craniata. Acraniata into two subphylum, Urochordata and Cephalochordata, and craniata is in one subphylum that is called vertebrata. Vertebrata means vertebrae bearing animals. And vertebrae means a small bones of backbone. हमारा जो बैकबोन है, नेक टू हिप, गर्दन से लेकर कमर तक फैला हुआ है, तो क्या इतना लंबा एक बोन है? नो, बैकबोन कंसिस्ट बाय combination of numerous small bones and small bones are called vertebrae. तो जिसमें वर्टिब्री होगा उसको क्या कहेंगे? वर्टिब्रेटा कहेंगे. इट मीन्स ऑल वर्टिब्री और वर्टिब्रेटा आर chordata, but all chordata are not vertebrata, because in chordata, urochordata and cephalochordata, chordata के अंदर urochordata और cephalochordata भी आता है और वह vertebrata नहीं कहलाएगा. So all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Okay, now in vertebrata, notochord present in embryonic stage. Notochord present in embryonic stage and it is replaced by vertebral column in adult. It means notochord only present in embryonic stage and in adult it is replaced by vertebral column. Vertebral column may be cartilaginous, consist of cartilage और बोनी. कुछ में कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, कुछ में बोनी भी हो सकता है. नाउ vertebrata is divided into subphylum vertebrata is divided into two divisions. One is agnatha, second gnathostomata. Agnatha means jaw absent.
जबड़ा नहीं होगा उसको हम कहेंगे एग्नाथा। ग्नैथोस्टोमाटा, नैथोस्टोमाटा विथ जा। एंड एग्नाथा इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, प्लाकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमाटा। प्लाकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमाटा। Gnathoostomata is divided into two parts, superclass that is called Pisces and Tetrapoda। ओके, पहले बताया जा चुका है। तो अब यहाँ देखिए एग्नाथा का दो क्लास है, प्लाकोडर्मी और साइक्लोस्टोमाटा। द ऑल मेंबर्स ऑफ प्लाकोडर्मी वेर एक्सटिंक्ट। इसका एक भी मेंबर अभी लिविंग फॉर्म में नहीं है, सारा का सारा एक्सटिंक्ट हो गया है। तो हम लोग को जो मेनली जानना है वह है साइक्लोस्टोमाटा। ओके, तो आगे हम लोग देखें साइक्लोस्टोमाटा। नाउ सी साइक्लोस्टोमाटा। टर्म साइक्लो रिफर्स टू सर्कुलर। अस्टोमाटा और अस्टोमा रेफर्स टू माउथ। So cycloostomata means animals having circular mouth in this form। माउथ राउंड होता है और चारों तरफ से पॉइंटेड टीथ इसमें प्रेजेंट होता है। पॉइंटेड टीथ आर प्रेजेंट बट जा इज absent बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्नाथा। जा नहीं होगा लेकिन टीथ होता है। सो मेन फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टोमाटा इज सर्कुलर and suctorial mouth। Suctorial mouth with pointed teeth and without jaw। Suctorial mouth means able to suck। Generally animals are ectoparasite और scavenger। Ectoparasite depends upon other host body। A scavenger depends upon dead and decay materials and takes food in solid form। ओके, ऐसे डेड एंड डीके पर होता है उसके लिए टर्म आता है सैप्रोफाइट। But in case of saprophyte, food is ingested, taken in liquid form, and scavengers depends upon dead and decay material, but food takes in solid form। Okay, so कुछ इक्टोपारासाइट होता है, कुछ स्कैवेंजर के फॉर्म में रहते हैं, और जो इक्टोपारासाइट होगा वह ब्लड सकिंग होगा। क्या होगा? ब्लड सकिंग एनिमल। और जो ब्लड पर फीड करता है वह ऐसे एनिमल के लिए टर्म यूज करते हैं सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस एनिमल बिकॉज इट सक्स ब्लड फ्रॉम होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के सरफेस से यह चिपक जाता है और अपने पॉइंटेड टीथ को उसके बॉडी में धसा देता है और फिर ब्लड सक करता है। सो इक्टोपारासाइट एंड स्कैवेंजर्स। मेराइन हैबिटेट इसका कैसा होगा? मेराइन बट एडल्ट मूव्स इन फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मीन्स एग लेइंग और गैमिट फॉर्मेशन। एनिमल्स डेवलप्ड एनिमल, एडल्ट एनिमल्स आर मेराइन, सी वाटर में है, लेकिन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग एग लेइंग दैट मूव्स फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर। इट मीन्स fertilization occurs in fresh water and after fertilization larva is developed। after fertilization larva is developed। after larva sorry after
लार्वा जनरली फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? फ्रेश वाटर में। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन लार्वा डेवलप्ड, दैट लार्वा कम्स बैक इन सी वाटर अगेन। वहां जैसे ही एग लेइंग हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा बनेगा वह लार्वा फिर से सी वाटर में वापस आ जाता है, सी वाटर में बाहर वापस आता है। इट मीन्स लार्वा कम्स बैक इन सी वाटर आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए लार्वा तो फिर से वापस आ गया सी वाटर में, एडल्ट गया था सी वाटर से फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पॉनिंग दे विल डाई। एडल्ट्स जैसे ही एग लेइंग गैमेट फॉर्मेशन करेगा उसके बाद वो क्या करेगा? डाई कर जाएगा। आफ्टर स्पॉनिंग एडल्ट will be die after few days, few hours. ठीक है। नेक्स्ट स्किन is scaleless, no any scale present on the surface, a smooth and soft. Okay. Also bears unicellular mucus gland. म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करेगा और उस म्यूकस के कारण स्किन का नेचर स्मूथनेस होगा। बॉडी इज eel-like. Eel-like means cylindrical body, slightly compressed or laterally compressed body. Okay, so body is eel-like. Paired fins are absent. No any fins are present in paired form. Fins are locomotory structures, but median fins are present and supported by median fins are present that are supported by cartilaginous fins ray, supported by इस तरह से अगर मान लिया फिन्स है तो इसमें कार्टिलेजिनस रे होगा दिस लाइक। So one median fins are present supported by cartilaginous fins ray. Animals are aquatic. Marine है, सी वाटर में, फ्रेश वाटर में, means animals are aquatic. And in aquatic animals, respiratory organs are gills. So respiration through gills. For respiration, 6 to 15 pairs of gill slits are present. For respiration, 6 to 15 pairs of gill slits are present. Okay. Next, circulatory system. Circulatory system is closed type. Closed type means proper heart is present and heart is two chambered. Two chambered heart. पता होगा आपको हार्ट का कौन कौन सा चैम्बर होता है। तो जनरली ऑरिकल और वेंट्रिकल इन केस ऑफ ह्यूमन,
4 chambered heart is present in human. 4 chambered heart is present. Okay, one is auricle, sorry, 2 auricle, 2 ventricle in case of human, but यहाँ है 2 chambered heart, 1 auricle and 1 ventricle. Auricle and ventricle. Some accessory chambers are also present in heart. Okay, some accessory chamber also present in heart, such as sinus venosus, conus arteriosus, truncus arteriosus. These are the accessory chamber of the heart. mainly दो है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, लेकिन कुछ एनिमल में इसके अलावे भी कुछ चैम्बर मिलता है, डेट इज कॉल्ड accessory chamber. So in case of cyclostomata, accessory chamber sinus venosus present, but accessory chamber conus arteriosus absent. अब जरा सा जान लें साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस. जैसा कि आपको पता होगा कि ऑर्किल और वेंट्रिकल हार्ट का दो मेन चैम्बर है. ऑर्किल में ब्लड बाहर से हार्ट में आता है और वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट से बाहर निकल जाता है. ओके, ऑर्किल रिसीव द ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड वेंट्रिकल सप्लाई द ब्लड टू बॉडी पार्ट्स. ओके, एंड बिफोर द ऑर्किल के पहले का चैम्बर है साइनस विनोसस. यानी जिस एनिमल में साइनस विनोसस होगा तो पहले बॉडी पार्ट से ब्लड साइनस विनोसस में आएगा. आफ्टर दैट साइनस विनोसस से कहां जाएगा? ऑर्किल में, ऑर्किल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के बाद जाता है कोनस आर्टेरियोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस में, और फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है. बट इन केस ऑफ साइक्लोस्टोमाटा ओनली साइनस विनोसस इज प्रेजेंट. इट मींस ऑर्किल के पहले ब्लड बॉडी पार्ट से साइनस विनोसस में आएगा, फिर ऑर्किल में आएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाएगा. Okay, next, blood in blood RBC present, in blood RBC present, and RBC circular, regular and nucleated. Circular, regular and nucleated. Next, excretion through kidney. Through kidney, and kidney may be protonephric and mesonephric. On the basis of development, kidney is divided into 3 types: protonephric, mesonephric and metanephric. Metanephric is well developed kidney. Protonephric and mesonephric is poorly developed. सबसे कम प्रोटो, उससे डेवलप मेसो, सबसे ज्यादा डेवलप मेटानेफ्रिक. ओके, एक्सक्रीशन. सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें, आई, सिंगल नॉस्ट्रिल, ओपनिंग ऑफ नोज, सिंगल नॉस्ट्रिल, ईयर. ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स. ओनली फॉर बैलेंसिंग. सेमी सर्कुलर कैनाल इज द पार्ट ऑफ ईयर, और ईयर का मेन फंक्शन है बैलेंसिंग के लिए. यह हियरिंग में इसका कोई रोल नहीं है, सुनने में कोई रोल नहीं है. ठीक है. नॉस्ट्रिल इज सिंगल. नॉस्ट्रिल मीन्स नोज ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ नोज, एंड सिंगल नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड मोनोराइनस. Monorhinous condition means having single nostril. और in case of human, अगर human की बात करें, 2 nostril है, that is called dirhinous. Dirhinous condition. Sense organ. Next, nervous system. Notochord and vertebral column
बोथ प्रेजेंट। पहले नोटोकॉर्ड होगा लार्वल स्टेज में, लेकिन जैसे ही एडल्ट स्टेज में आएगा वह वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाएगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। जैसा कि बताया मैं कि एडल्ट स्पानिंग के लिए मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है, फ्रेश वाटर से लार्वा, इसका मतलब है यहाँ लार्वा है, एंड लार्वा, नेम ऑफ लार्वा इज एमोसिएट लार्वा। एमोसिएट लार्वा, ओके, लार्वा इज एमोसिएट लार्वा। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजॉन, example petromyzon also called lamprey, and second is myxin, also called hagfish, तो दो एग्जाम्पल याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इसका मेन क्वेश्चंस लार्वा के लिए यानी कि स्पानिंग का जो प्रोसेस है, एनिमल्स आर मेराइन बट फॉर स्पानिंग एडल्ट्स मूव इन फ्रेश वाटर, ओके। अब्सेंस ऑफ स्केल्स, अब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स, ओके। चलिए, तो हमने देखा साइक्लोस्टोमाटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीसेस। फिशेज के जगह पर पीसेज लिखाता है, फिश का प्लूरल पीसेज है, ओके। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे हम लोग। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास पीसेस। उसके पहले कुछ टर्म्स है जिसको कि जान लें। अभी मैं बताया इन केस ऑफ साइक्लोस्टोमाटा एडल्ट मूव्स फ्रॉम sea water to fresh water for spawning, and after metamorphosis larva come back in sea water again. It means transfer of livings from one place to another place takes place, and this process is called migration. Migration also seen in some fishes or in birds, okay. So migration means movement, transfer, and migration is of two types mainly। खास करके अगर फिश के कंडीशन में देखें तो माइग्रेशन का दो टाइप्स है, कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस। माइग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस। Catadromous and anadromous. Catadromous means fresh water to marine water. Movement from fresh water to marine. Anadromous opposite, from मेराइन टू फ्रेश वाटर, ओके। अब देखिए, अभी मैं कंडीशन बताया साइक्लोस्टोमाटा के केस में एडल्ट किधर से किधर मूव करता है। एनाड्रोमस बता रहा हूं मेराइन टू फ्रेश वाटर, और यह फीचर्स है एडल्ट के लिए। इट मीन्स एडल्ट साइक्लोस्टोम्स शो एनाड्रोमस माइग्रेशन, व्हाइल लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम्स, लार्वा का डेवलपमेंट हुआ फ्रेश वाटर में, वहां से आ गया मेराइन वाटर में, लार्वा शो कैटाड्रोमस माइग्रेशन, ओके। सम अदर फिशेज आल्सो शो माइग्रेशन
कैटाड्रोमस एंगुला, एग्जाम्पल अगर देखें एंगुला फिश, ये टाइप ऑफ फिश, एंड फ्रेश वाटर टू मेराइन ऑल्सो, लार्वा ऑफ cyclostomes and larva of cyclostomes is called ammoset larva. Okay, from marine to fresh water, example cyclostomes and some fishes, cyclostomes and some fishes in fish, salmon, Hilsa, etc. So these are two types of migration, catadromous and anadromous, seen in pieces. फिश ग्रुप में यह देखने को मिलता है। इसके अलावा बताया साइक्लोस्टोमाटा। ओके, नेक्स्ट जनरली यू नो वर्टिब्री मीन्स अ स्मॉल बोन्स। सपोज दैट these are vertebrae situated one above the other, एक के बाद मिला होता है और सब मिलकर के बनाता है वर्टिब्रल कॉलम। ओके, मेन बॉडी ऑफ वर्टिब्री इज कॉल्ड सेंट्रम। मेन बॉडी ऑफ वर्टिब्री इज कॉल्ड सेंट्रम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ shape of centrum, vertebrae is of different types. Okay, so now we know types of vertebrae or centrum. Types of vertebrae or centrum. Centrum means main body of vertebrae is called centrum. Okay, and on the basis of shape of the centrum, vertebrae is of different types: amphicillus, opisthocoelous, platycillus. देखते हैं ना, these are the 6 types of centrum present in vertebrae: Procellus, Opisthocoelus, Amphicillus, Acillus, Heterocillus, and Amphiplatyon. These are the on the basis of main surface of the vertebrae, surface of the centrum. Centrum के surface के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोसिलस, जैसे मान लिया जाए अगर ये वर्टिब्री है, इस तरह से बहुत सारा मिल करके बना है बैकबोन। सो वन एंड इज एंटीरियर एंड। इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें तो नेक तरफ का जो रीजन होगा एंटीरियर होगा, हिप तरफ का रीजन जो होगा पोस्टीरियर होगा। वन एंड इज एंटीरियर एंड वन एंड इज पोस्टीरियर। सभी वर्टिब्री की बात करें तो ईच वर्टिब्री ऑल्सो 2 एंड्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सभी वर्टिब्री का भी। ठीक है ना। अब देखिए प्रोसिलस में क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, दो की बात हम कर रहे हैं, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर इज कनकेव, पोस्टीरियर कन्वेक्स। इसका उल्टा इसमें होगा, इट मीन्स एंटीरियर कन्वेक्स, पोस्टीरियर कनकेव। एम्फिसिलस means both surface, anterior and posterior both concave, anterior and posterior both concave, that is called amphicillus. Acillus no convex or concave, नो कन्वेक्स और कनकेव, ऐसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है। हेटेरोसिलस टीथ लाइक अपीयरेंस, एंड
फ्लैट और पैड लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ एंड्स। फिगर से देख लें। फर्स्ट, प्रोसिलस एंटेरियर कनकेव पोस्टीरियर, सपोज दैट इस तरह का बना दे, दिस लाइक, इधर एंटेरियर मान लें और इधर पोस्टीरियर। एंटेरियर कनकेव, पोस्टीरियर कन्वेक्स, दिस इज प्रोसिलस, नंबर 1 का फिगर। सेकेंड नंबर, ओफिस्थोसिलस एंटेरियर कन्वेक्स, पोस्टीरियर कनकेव, सॉरी दिस लाइक, एंटेरियर कनकेव, पोस्टीरियर कनकेव, एंटेरियर कन्वेक्स, ओके, पोस्टीरियर कनकेव। नेक्स्ट, एम्फिसिलस एंटेरियर पोस्टीरियर बोथ कनकेव, थर्ड नंबर। दिस लाइक, थर्ड। नेक्स्ट, एसिलस, फोर्थ नंबर यहां बनाता हूं, फोर्थ नंबर, एसिलस नो कनकेव और कन्वेक्स, सिंपल प्लेन, दैट इज एसिलस। नेक्स्ट, हेट्रोसिलस टीथ लाइक अपीयरेंस, फिफ्थ नंबर, दिस लाइक अपीयरेंस। एक का अगर दूसरे वर्टिब्रा का बनाएंगे तो फिर इसमें फिट कर जाएगा, दिस लाइक, दिस इज हेट्रोसिलस, ओके। एंड नेक्स्ट 6 नंबर, एम्फीप्लैटियन, disc or pad like structures present at both ends, this like. So these are the different types of vertebrae और centrum। इसका यूज आगे का हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया, वहां इस टर्म का यूज होगा, एम्फीप्लैटियन, हेट्रोसिलस, प्रोसिलस, इस टर्म को याद रखेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पीसेस।